Hello students, welcome to your very own channel Drub, and with your love and support we have surpassed the 1000 mark students. So happy dance banta hai, happy dance banta hai. Thank you for sharing the videos with your friends and keep doing so if you like the way I explain. Now I was going to take some other chapter, but there are many students who have requested me to take absorption by roots. So आपका हुकुम सर आँखों पर. I am now going to take on popular demand absorption by roots. So please make sure you watch the entire video, answer all the questions and share it with as many people as you can. Before we start, super subscribers. The first one is Unnati from Amchi, Mumbai. दूसरी है Yogita from Batla, Punjab. And then comes Vishalakshi, and last but not the least, Smruti Rupa, both from Amchi, Mumbai. Students outside Mumbai, come on, make some noise in the comment section below. Absorption of water and minerals by root hair. Now what is root hair? वो explain करना है students. So ये मेरा root है. Root के में बहुत सारे cells होंगे obviously. Now the outermost layer of the cell present in the roots is called epidermal cell, students. So epidermal cells are the cells which are present in the outermost layer of the root. तो ये जो epidermal cells है, they are giving out fine projections or outgrowths. So this outgrowth given by the epidermal cell is nothing but root hair, students. So root hair is not this part I have taken and I have enlarged it out here. So पूरा root नहीं बनाया students, we have only made the outermost layer of the root. So this is the epidermal layer, and epidermal layer giving out fine outgrowths. The outgrowths are root hair. So root hair are fine outgrowths of epidermal cell of the root. Now let's talk about the components. So ऐसे मैंने 3 epidermal cell students बनाए हैं. तीनों में root hair है. कहीं पे छोटा है, it is still growing. कहीं पे थोड़ा बड़ा है, कहीं पे already बहुत ज़्यादा outgrowth हो चुका है. Now outermost layer of the cell is called cell wall. Outermost layer, the green layer, is cell wall. The second layer, that is the yellow layer, is called cell membrane. सबसे बाहर cell wall, second layer cell membrane. अंदर है बड़ा सा nucleus in the cytoplasm. तो cell wall, cell membrane, nucleus, cytoplasm. ऐसे 1, 2, 3 सेल्स बनाए, बहुत सारे सेल्स होंगे स्टूडेंट्स. Now let's talk about the feature of the cell and the root hair which helps in absorption of water and minerals. So there are 3 points, students. सबसे पहला point है your root hair increases the surface area. अभी ये कैसे हो रहा है? I'll explain. Now if this was my epidermal cell, this is the surface through which water will be absorbed. तो 1, 2, 3, 4 surface है. Now I am adding a root hair out here, students. So मेरा surface increase हो गया, दिख रहा है. पहले सिर्फ 4 points थे. Now I have added this entire surface. So the water and minerals absorbed is obviously going to be more if there is root hair present. So they have large surface area. क्या बढ़ा रहा है? Surface area which increases the absorption. Second है ये जो cell है ना, अगर इसको enlarge करेंगे तो सबसे बाहर मैंने बनाया cell wall, उसके अंदर बनाया cell membrane, cell membrane के अंदर बनाया nucleus, and then there is this structure. ओके, वैक्यूल बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर वाटर एंड मिनरल स्टोर्ड होता है स्टूडेंट्स. सो वाटर प्लस मिनरल्स इज कॉल्ड सेल
सैप। तो सेल सैप में वाटर भी है और मिनरल्स भी है। अभी कौन ज्यादा और कौन कम? वाटर इज अ सॉल्वेंट, उसके अंदर मिनरल्स डाला इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे वाटर कम है, वाटर कम है एंड सॉल्यूट ज्यादा है। सॉल्यूट मतलब मिनरल्स, तो सेल के अंदर पानी कम है, सेल के बाहर क्या होगा? रूट हेयर है, तो रूट विल बी प्रेजेंट इन सॉइल, तो सॉइल के अंदर भी तो सॉइल वाटर रहेगा, तो बाहर पानी ज्यादा है। सो कोई भी चीज हमेशा यूनिवर्सल रूल समझ लो, विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गो फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो मुझे तो चाहिए कि वाटर फ्रॉम द सॉइल शुड एंटर इनटू माय रूट, मतलब आई वांट वाटर टू बी मोर आउटसाइड द सेल एंड लेस वाटर टू बी प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ताकि बाहर से पानी अंदर आ सके। सो अंदर पानी कम कैसे करे? सॉल्वेंट कम कैसे करे? बाय एडिंग सॉल्यूट। सो it has cell sap which is more concentrated. more concentrated बोला मतलब less water students, more concentrated बोला मतलब less water students. So cell or root hair cell has less water and it has more solute. solute कौन से फॉर्म में है students? minerals. So it has cell sap which is more concentrated. more concentrated मतलब less water बोलो या more solute बोलो than the surrounding soil. इससे मुझे क्या फायदा है? सेल के अंदर पानी कम है, सेल के बाहर पानी ज्यादा है। वाटर विल ऑलवेज गो फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वाटर फ्रॉम द सॉइल विल एंटर इनटू द सेल स्टूडेंट्स। मुझे यही तो चाहिए था ना। इट हैज मतलब इट हैज आउटर कौन सा कवरिंग है? सेल वॉल एंड इनर है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मतलब जिसको अंदर आना है आओ, जिसको बाहर जाना है जाओ, कोई भी रोक टोक नहीं है। तो cell wall is not the thing that I am looking out for here. I want to explain cell membrane students. Cell membrane is a semi-permeable membrane. Cell membrane is a semi-permeable membrane. Means what? Cell membrane will allow only and only water molecules to pass through students. तो बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, दोनों के बीच में है सेल मेम्ब्रेन which is semi permeable. So water will go from region of its higher concentration to region of its lower concentration through a semi परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस विच सेज सिंपल टर्म्स में पानी जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से जाएगा जहाँ पे पानी कम होगा, प्रोवाइडेड इन दोनों एरियाज के बीच में चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स. दिस इज osmosis which we will be talking about in this particular chapter in the later half students. So 3 adaptation root hair का increases the surface area ताकि ज़्यादा पानी absorb हो जाए. Second, it has cell sap which is more concentrated. more concentrated बोला मतलब water is less and solute is more. अंदर पानी कम ही चाहिए, बाहर पानी ज़्यादा ही चाहिए ताकि वाटर फ्रॉम द सॉइल कैन एंटर इनटू द सेल. ऑब्वियसली दोनों के बीच में क्या है? सेल मेम्ब्रेन विच इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स. सो रूट हेयर, द characteristic features we have finished. Now I have magnified the root hair cell here. This is a board question students. 3 मार्क के लिए बनाने आता है. It is super duper easy. Root hair
इज एन एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल. तो मैंने एक एपिडर्मल सेल बनाया एंड द एक्सटेंशन इज रूट है. तो ये सेल एपिडर्मल सेल हो गया, एक्सटेंशन है मेरा, रूट है. द आउटरमोस्ट कवरिंग इज सेल वॉल. आउटरमोस्ट कवरिंग इज सेल वॉल. तो ब्लू वाला सेल वॉल है, फ्रीली परमिएबल है, इससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है ये चैप्टर में. What I am interested in is the second layer, that is the green one which I have made, that is cell membrane which is semi-permeable, which will help in osmosis students. इसके बाद में अंदर है ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, बड़ा बड़ा वैक्यूल, एंड कहीं पे छोटा सा न्यूक्लियस बना देना. न्यूक्लियस को लेबल करना रह गया है. So मैंने न्यूक्लियस यहाँ पे बनाई. इट कैन बी एनीवेयर इन दी सेल्स. So ये बहुत ही इजी डायग्राम है. डू द डायग्राम. ओके, look at the diagram and do it yourself on एक piece of paper पे, और confidence आएगा. सबसे पहला process which helps in absorption of water in plants, not so important, ठीक है, but still we'll do it. It's called imbibition. कभी कभी आ जाता है explain the following terms में. So imbibition is a phenomena by which living or dead plant cells absorb water by surface attraction. इसका मतलब क्या है देखेंगे. देखा रहेगा मानसून सीजन में जो वुडन डोर्स होते हैं ना वो स्वेल हो जाते हैं. क्यों? वुडन डोर्स बोले मतलब उसमें प्लांट सेल्स रहेगा. प्लांट सेल बोला मतलब सेल वॉल रहेगा. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. सेल्यूलोज लव्स वाटर. ठीक है, तो क्या होता है, सपोज दिस इज सेल्यूलोज. मॉइस्चर बहुत होता है मानसून सीजन में, रेनी सीजन में. So the water molecules will now get attracted to the cellulose plant cell, and it is going to form a thin layer over my door. इतना थिन लेयर होता है, माइक्रोस्कोपिक रहता है, तो हम लोग ऐसे कि उसको झाड़ नहीं पाएंगे. बहुत सरफेस अट्रैक्शन है. इट इज जस्ट प्रेजेंट ऑन टू द सरफेस. इसको एडजॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, बट टेक्स्ट बुक में एब्जॉर्ब वर्ड यूज किया तो मैं भी वही कर रही हूँ. बट एक्चुअली इट इज एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस पे ही मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, एंड एब्जॉर्प्शन मतलब सरफेस अंदर जाता है. बट इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब समथिंग पहले यू हैव टू एडजॉर्ब इट. ए डी है ये है ए बी. सो पहले एड्सॉर्ब करेंगे. एड्सॉर्ब कभी होगा, सरफेस अट्रैक्शन होगा तभी होगा. सो आई वांट माय वाटर मॉलिक्यूल्स टू बी एड्सॉर्ब ऑन द सेल वॉल, एंड उसके बाद दे विल गो इन थ्रू ऑस्मोसिस, जो आगे देखेंगे अभी. सो इम्बिबिशन इज अ फिनोमेना बाय विच लिविंग और डेड प्लांट सेल्स एब्सॉर्ब वाटर थ्रू सरफेस अट्रैक्शन. तो लिविंग हो डेड हो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सिर्फ सरफेस पे ही जाना है, उसके अंदर जाना नहीं है इन केस ऑफ इम्बिबिशन. नाउ जैसे ही मानसून जाएगा एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर कम हो जाता है. द वुडन डोर्स रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल साइज शेप. कैसे? बाहर मॉइस्चर कम है तो वाटर जो थिन फिल्म बना हुआ है नाउ विल इवोपोरेट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. सो दिस इज इम्बिबिशन. So now we are going to talk about 3 definitions. You need to know these definitions by heart, students. If you understand them, then you don't have to mugify them. It will come naturally to you. तो पहले समझ लेंगे, समझ में आ गया तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है. Now the first definition here is diffusion. Diffusion क्या है? Diffusion is movement of substances, solid, liquid, gas. मतलब कोई भी चीज solid भी हो सकती है, liquid भी हो सकती है, gas भी हो सकती है. Movement of substances, solid, liquid, gas from region of higher concentration to their region of lower concentration until equilibrium is achieved. इसका मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है, सॉलिड, लिक्विड या गैस. मूवमेंट है ऑफ सॉलिड, लिक्विड या गैस, मतलब तीनों में ये कर सकते हैं. फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे वो चीज ज्यादा रहेगी वहां से कहाँ पे जाएगी? टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. कब तक ये चलते रहेगा? जब तक देयर इज एन इक्विलिब्रियम अचीव. एग्जाम्पल लेंगे, यू आर इन अ रूम, क्लोज रूम, एंड सम ऑफ योर फ्रेंड्स स्प्रेज अ डीओ, परफ्यूम. ठीक है, तो समझो कि आई हैव टेकन अ डीओ. लेट्स से
So I have this DO and I am going to spray it now. So मैंने स्प्रे कर लिया. So यहाँ पे ये gaseous molecule ज़्यादा है. थोड़े टाइम बाद I get the smell students. जबकि मैंने DO वहाँ पे छिड़का है. But why? The gaseous molecule वहाँ पे था उसका region of higher concentration. यहाँ पे है region of lower concentration. So these gaseous molecules have definitely traveled from region of their higher concentration to region of their lower concentration. इसलिए तो मुझे smell आई. अगर अभी थोड़े टाइम बाद कोई और जो और दूर खड़ा रहेगा उसको भी स्मेल आएगी. ये कब तक चलेगा? जब तक all these perfume molecules have equally distributed themselves in the given room, students. So this is diffusion. Now let's also take up an example of putting sugar in water. So when I put sugar in water, solid है sugar, it will go from its higher concentration to its lower concentration. ऐसा करते करते वो पूरे water में फैलेगा and then it is going to distribute itself equally throughout the water. So when I take a sip, each sip will be equally sweet because they have equal amount of sugar solution, students, sugar molecules. So this is diffusion, movement of substances, solid, liquid, gas from region of higher concentration to region of lower concentration until equilibrium is achieved. So diffusion, movement of molecules, solid, liquid, gas from region of higher concentration to region of lower concentration until equilibrium is achieved. I hope that this concept is clear. Let's see diffusion, students. So I have taken a glass filled with water. Now into this glass I am going to add powder. Solid है ये. So basically I have just add C. Now molecules are going from region of their higher concentration to region of their lower concentration. ये कब तक चलेगा? जब तक there is an equilibrium achieved. मतलब पूरा का पूरा मेरा water has turned red. यहाँ पे equilibrium आ गया, मेरा diffusion खत्म हो गया, students. Movement of molecules from region of higher concentration to region of lower concentration until equilibrium is achieved. You can see that all this red powder the molecules are equally distributed in the given solution, students. Osmosis is movement of only and only water molecules from region of higher water concentration to region of lower water concentration through a semi-permeable membrane. Water concentration word use करना important है, students. So osmosis, movement of water molecules from region of higher water concentration to region of lower water concentration across a semi-permeable membrane. And because of this reason only हमने बोला था कि ये जो मेरा root hair cell है इसके अंदर वाटर लेस, मिनरल्स मोर. अगर अंदर पानी कम है मतलब सॉइल में पानी ज़्यादा है. एंड ऑब्वियसली बाहर सेल वॉल है, अंदर है सेल मेम्ब्रेन. So region of higher water concentration outside, region of lower water concentration inside. So water from the soil will enter into the cell through semi-permeable membrane which is cell membrane. तो osmosis से ही water is absorbed in the roots, students. Okay students, so let's talk about osmosis a bit more. ये है मेरा solution A. This is solution A and this is solution B. Now I have used water but I have colored the water so that you can see the level clearly. So ये है मेरा A, ये है मेरा B. Now I want you all to tell me osmosis किधर से किधर होगा. Will it go from A to B or from B to A? पहले तो ये क्वेश्चन है, A से B में जाएगा या B से A में जाएगा. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कि ये जो ग्लास है इसका जो कवरिंग है ये क्या होना चाहिए, कौन सा मेम्ब्रेन होना चाहिए, A
टू बी या बी टू ए, एंड दोनों के बीच में कौन सा मेम्ब्रेन चाहिए स्टूडेंट्स? नाउ वी लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ दिस इज अ बिट डिफरेंट स्टूडेंट्स, सो ध्यान से सुनेंगे. मेरा प्रॉब्लम सुनो. मिनरल्स आर मोर इनसाइड द सेल, मतलब रूट के अंदर मिनरल्स ज्यादा है. अगर रूट के अंदर मिनरल्स ज्यादा है मतलब सॉइल में मिनरल्स कम है. So, according to the diffusion concept, minerals should go from higher concentration to region of lower concentration. मतलब मेरे minerals should go from the root into the soil. ऐसा होगा तो चलेगा क्या? Not always students. मुझे तो चाहिए कि minerals from the soil should also enter into the root. तो क्या करा जाए? बट बाहर तो मिनरल्स कम है, अंदर तो मिनरल्स ज्यादा है, तो यहाँ पे द मूवमेंट विल बी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय द टर्म अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन? अब तक हम जो बात कर रहे थे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, molecules were moving from region of higher concentration to region of lower concentration. तो it's like coming down on a slide, है ना? स्लाइड लसरगुंडी जिसको बोलते हैं, गार्डन वगैरह में होता है. So when you are above, you just sit and you automatically slide down. इसमें कोई एनर्जी लगती है क्या स्टूडेंट्स? धक्का मार मार के नीचे जाना पड़ता है क्या? नहीं. तो whenever a molecule goes from higher concentration to lower concentration, easy, लसरगुंडी है, एनर्जी की जरूरत नहीं है. बट मिनरल्स के केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? मिनरल्स आर गोइंग फ्रॉम रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बाहर तो मिनरल्स कम है ना, एंड दे आर गोइंग टू रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे तो इट्स लाइक कमिंग अप ऑन द स्लाइड. तो अगर स्लाइड में आप नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे, इट विल रिक्वायर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स. सो व्हेनेवर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स higher concentration, it requires energy, and that is why the name active transport. Cell has to actively participate in mineral absorption. water absorption में energy की जरूरत ही नहीं है, बाहर water ज्यादा है, अंदर water कम है, सेल आराम से चिल मार रहा है, पानी बाहर से अंदर आएगा ही आएगा through osmosis. So osmosis से क्या absorb हो रहा है? वाटर. एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या अब्सॉर्ब हो रहा है स्टूडेंट्स? मिनरल्स. मिनरल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अब्सॉर्ब हो रहे हैं, वाटर ऑस्मोसिस से अब्सॉर्ब हो रहा है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं? मिनरल मॉलिक्यूल्स. सो मूवमेंट ऑफ मिनरल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर higher concentration by utilizing energy is called active transport. Active transport, movement of mineral molecules from region of lower concentration to region of higher concentration utilizing energy. I hope that this concept is clear students. Now we are going to take a small experiment to prove osmosis. So students, we have already seen the adaptation of the roots. root है, bold question है, बोल चुकी. डायग्राम बनाने आना चाहिए स्टूडेंट्स. adaptation of root है to increase the absorption. उसके बाद में we did the processes में सबसे पहले किया diffusion, उसके बाद में उसका एक्सपेरिमेंट देखा. नेक्स्ट वी डिड ऑस्मोसिस, उसका एक्सपेरिमेंट देखा. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट दैट कम्स एज अ बोर्ड क्वेश्चन अबाउट ऑस्मोसिस. बिफोर आई डू द एक्सपेरिमेंट, मैं एक और बार टॉपिक क्रिस्टल क्लियर करना चाहती हूँ. ऑस्मोसिस सिंपल है, पानी जहाँ पे ज्यादा होगा वहां से जाएगा, जहाँ पे पानी कम होगा, प्रोवाइडेड ये दोनों सोल्यूशन के बीच में क्या होना चाहिए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन.
सेल में भी ऑलरेडी हैव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज अपना सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के अंदर वाला. नाउ सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीजें, सॉल्वेंट दैट इज वाटर, एंड सॉल्वेंट के अंदर डालते जाएंगे सल्यूट. ओके, सल्यूट कैन बी एनीथिंग, मिनरल्स. इन केस ऑफ रूट हेयर सेल आई कैन ऐड शुगर, सॉल्ट, कुछ भी डाल सकती हूँ. ठीक है, तो जितना. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. So this is my solution A, this is my solution B. दोनों में मैंने 10 ml वाटर डाला हुआ है. ठीक है, दोनों में. चलो 10 नहीं, 50 ml वाटर आई हैव एडेड इन बोथ. चलो ठीक है, सो वाटर आई हैव एडेड 50 ml दोनों में. A में भी डाला, B में भी डाला. 50 ml water, 50 ml water. Now in A I am adding 5 gram sugar and B में I am adding 15 gram sugar. दोनों में 50-50 ml पानी है, तो पानी सेम है, तो वो मैं इरेज कर देती हूँ. नाउ सोल्यूट, शुगर सोल्यूट है, यहाँ पे 5 ग्राम सोल्यूट डाला, यहाँ पे 15 ग्राम सोल्यूट डाला. माय क्वेश्चन इज ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगा, A to B होगा या B to A होगा. ठीक है, सो देयर आर टू ऑप्शंस, A to B ऑप्शन नंबर 1 ले लेते हैं एंड B to A ऑप्शन नंबर 2 ले लेते हैं. नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल सी कि यहाँ पे 15 ग्राम्स है, यहाँ पे 5 ग्राम्स है, तो ज्यादा से कम में जाएगा, सो इट विल गो फ्रॉम B to A. बट यही पे गलती हो गई स्टूडेंट्स. 15 ग्राम्स क्या है, सोल्यूट है. 5 ग्राम्स क्या है, सोल्यूट है. एंड ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट. तो उल्टा चले गए हम लोग. सो अगर यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, 15 ग्राम्स सोल्यूट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट रहेगा कम, बिकॉज वाटर में जितना सोल्यूट डालते जाओगे, सोल्यूट जितना बढ़ते जाएगा, सॉल्वेंट उतना कम होते जाएगा. ठीक है, एंड 5 ग्राम्स यहाँ पे सोल्यूट कम है, तो सॉल्वेंट ऑब्वियसली विल बी मोर. तो ज्यादा पानी किधर है स्टूडेंट, ज्यादा पानी है A में, कम पानी किधर है B में. तो ऑस्मोसिस किधर से किधर होना चाहिए, इट शुड बी फ्रॉम A to B and not from B to A. So whenever they will tell you, they will always and always tell you ये 5 ग्राम शुगर सोल्यूशन है, 20 ग्राम शुगर सोल्यूशन है. सो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस फ्रॉम वेयर टू वेयर. वो लोग वाटर नहीं बोलेंगे. अभी काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैम दोनों में तो 50 ml वाटर ही था, तो ऑस्मोसिस तो दोनों में वाटर सेम था, तो ऑस्मोसिस क्यों हुआ. नाउ दोनों में 50 ml था स्टूडेंट्स, बट मोमेंट यू ऐड different amount of solute concentration, the relative concentration of water changes. तो दोनों में मूवमेंट आपने अलग अलग सोल्यूट डाल दिया, तो रिलेटिव वाटर कॉन्सेंट्रेशन दोनों में चेंज हो गया. हमेशा वो लोग सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन देते हैं, तो हमको सोल्यूट नहीं देखने का, ज्यादा यहाँ पे कम यहाँ पे, तो B to A कर दो. हम लोग ने सोल्यूट पे से किसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है. तो यहाँ पे अगर सोल्यूट ज्यादा है 15 ग्राम्स, तो सॉल्वेंट कम रहेगा, वाटर कम. यहाँ पे सोल्यूट 5 ग्राम्स है, तो सोल्यूट कम है, तो सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा. एंड ऑस्मोसिस सोल्यूट का मूवमेंट नहीं है, सॉल्वेंट का मूवमेंट है. मतलब वाटर विल गो फ्रॉम A to B प्रोवाइडेड ये जो दोनों के बीच में लाइन बना है रेड हैज टू बी अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एक आध दो और एग्जांपल्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स. Two examples I'm going to take just to see how clear your concepts are. This is my first A, this is B. वाटर दोनों में सेम ही डाल रखा है 50-50 ml. यहाँ पे भी A, B, ये मेरा सेकंड है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट ये, सेकंड ये. ओके, सो यहाँ पे भी वाटर 50-50 ml डाल दिया है. नाउ A में I have added 15 ग्राम शुगर एंड B में I am adding 25 ग्राम शुगर. नाउ लिखना है आंसर कहाँ पे, ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा, A to B जाएगा या B to A जाएगा. ये बीच का सेमी परमिएबल है, मैं बोल रही हूँ.
So pause the video now, go in the comment section below and tell one में ऑस्मोसिस किधर से किधर जाएगा, A to B या B to A. मैंने सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है स्टूडेंट्स. सोल्यूट में से हम लोग को किसका निकालना पड़ेगा, सॉल्वेंट का, एंड फिर देखने का सॉल्वेंट हायर से लोअर. सेकेंड वाला भी ले लेते हैं. यहाँ पे आई हैव एडेड 50 ग्राम शुगर एंड यहाँ पे आई हैव एडेड 30 ग्राम शुगर. सो ऑस्मोसिस किधर से किधर होगा, A to B, B to A. आई होप दैट इस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा. आपको शुगर का कॉन्सेंट्रेशन देंगे, बट शुगर में से हमको किसका निकालना है, वाटर का निकालना है. एंड देन ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स. 1 and 2 का आंसर कमेंट सेक्शन में देना ना भूले स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑन ऑस्मोसिस. बोर्ड क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ आई हैव टेकन अ बीकर है. बीकर में मैंने क्या भर दिया है, वाटर, एंड वाटर का इनिशियल लेवल है मार्क्ड. उसके बाद आई हैव टेकन अ थिसल फनल. थिसल फनल समझ में आता है ना, उसको उल्टा कर दिया है. एंड द माउथ ऑफ थिसल फनल इज कवर्ड विथ, अभी के लिए याद रखो, सेलोफेन पेपर. किससे कवर किया है, सेलोफेन पेपर. नाउ थिसल फनल इज फिल्ड विथ शुगर सोल्यूशन. आई हैव मार्क्ड द इनिशियल लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन हियर. बीकर में पानी का इनिशियल लेवल मार्क कर दिया. थिसल फनल में शुगर सोल्यूशन का लेवल मार्क कर दिया. एंड द माउथ ऑफ थिसल फनल कवर्ड विथ सेलोफेन पेपर. नाउ ये प्योर सॉल्वेंट है, पानी. बीकर में सिर्फ पानी है. थिसल फनल में वाटर है, सॉल्वेंट, एंड उसके अंदर शुगर डाला है. सो पानी ज्यादा किधर है, बीकर में है कि थिसल फनल में है? ऑब्वियसली बीकर में, बिकॉज प्योर सॉल्वेंट सिर्फ पानी ही है, एंड ये तो सॉल्यूशन है, इसमें शुगर ऐड किया है. सो वाटर इज मोर इन बीकर, वाटर इज लेस इन थिसल फनल. ये तो हमको समझ में आ गया. वाटर ज्यादा किधर है, बीकर में, बिकॉज बीकर में सिर्फ वाटर है. थिसल फनल में वाटर इज लेस बिकॉज आई हैव एडेड शुगर इन इट. सो water will go from region of its higher concentration to region of its lower concentration. ठीक है, या हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन जाना चाहिए, प्रोवाइडेड दोनों के बीच में क्या चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो लेट्स सी. After few hours, what will I notice? I will notice कि level of water is decreased. Level of water decreases. Downward arrow yes मतलब decreases. तो water from the beaker has decreased. Second observation, what level of sugar solution in the thistle funnel will increase. So thistle funnel में sugar solution का final level increase हो जाएगा students. And now I'm going to take some water from the beaker and taste it. Water from the beaker is not sweet to taste. मीठा नहीं लग रहा है. So ये 3 observation है. क्या observation? पानी level कम हो गया, sugar level solution बढ़ गया, and when I tasted the water from the beaker it was not sweet. Based on this observation I am going to draw my conclusion. ठीक है. So first conclusion, level यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे बढ़ा, मतलब some amount of water from beaker has definitely entered into thistle funnel, because यहाँ पे level मेरा कम हो गया water का, and sugar solution का level बढ़ गया, तो obviously water from the beaker has entered into thistle funnel. First observation. Second observation, nothing from thistle funnel has entered into the beaker. ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, because I tasted the water from the beaker and it was not sweet. इसका मतलब sugar solution water में आया नहीं है. अगर आता तो sweet तो होता. तो water from beaker gone into the thistle funnel, yes. Nothing from thistle funnel has entered into the beaker, yes. Hence cellophane paper has acted like a semi-permeable membrane. Some amount of water from beaker entered into thistle funnel. Nothing from thistle funnel has entered into beaker. Cellophane paper acted as a semi-permeable membrane. अगर अपने concepts clear होंगे students, तो कुछ भी question आने दो, हम लोग हमेशा answer कर पाएंगे. Now, instead of cellophane paper, what other things can I use? I can use a egg membrane. Egg membrane भी यूज कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. आई कैन ऑल्सो यूज एनिमल ब्लैडर, गोट ब्लैडर वगैरह लिखेंगे, गोट एनिमल ही है. सो सीधा ही ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, सीधा ही ब्लैडर निकाल के इधर नहीं लटका देना. देयर आर सम प्रोसेसेस दैट वी आर सपोज टू डू एंड देन वी कैन यूज इट. सो लेबल बोलेंगे, व्हाट डिफाइन द नेम द प्रोसेस स्टडीइंग इन द एक्सपेरिमेंट, ऑस्मोसिस.
डिफाइन द प्रोसेस, ऑस्मोसिस को डिफाइन करने का। फिर वो लोग बोलेंगे लेबल पार्ट 1, तो लेबल में हम क्या करेंगे, सेलोफेन पेपर, एग मेम्ब्रेन, एनिमल ब्लैडर, कुछ भी करेंगे, ओके। इसके बाद यू कैन हैव सिमिलर सेटअप इन सम अदर मोड, लेट्स सी व्हाट इज दैट। सो यहाँ पे एक बाबा जी है, बाबा जी का नाम है विस्किंग, बाबा जी का नाम क्या है, विस्किंग। विस्किंग बाबा ने एक पोटली बनाया, तो वो पोटली किसका हुआ, विस्किंग बाबा जी का। सो दिस इज विस्किंग बैग, ये बैग का नाम क्या है, विस्किंग बैग। विस्किंग बैग इज अ मैन मेड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मैन मेड ऑब्वियसली विस्किंग ने बनाया है। अभी यहाँ पे पोटली है, ये लेवल मार्क करने के लिए मेरे को इसमें क्या डालना पड़ेगा, एक कैपिलरी ट्यूब या एक ट्यूब डालना पड़ेगा। सो एक ट्यूब डाल देते हैं विस्किंग बैग में, एंड विस्किंग बैग को किससे भर देंगे, शुगर सोल्यूशन से, एंड बाहर मिलेगा मुझे एक बीकर फिल्ड विथ वाटर। सो पूरा का पूरा ऑपरेटर सेम रहेगा स्टूडेंट्स, सिर्फ इंस्टेड ऑफ थिसल फनल क्या रिप्लेस हो जाएगा, बाबा जी का पोटली। कौन से बाबा जी का पोटली, विस्किंग बाबा जी का पोटली। एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम। फिर अगर आपको ये पोटली लेबल करने बोलेंगे तो विस्किंग बैग लेबल करेंगे। विस्किंग बैग यहाँ पे लेबल कर सकते हैं क्या, नहीं। तो साथ में क्यों लिखा है, बिकॉज दे आर ऑल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो कुछ भी सेटअप आ सकता है, हमको आंसर आएगा ही आएगा स्टूडेंट्स। नाउ दे विल आस्क यू इन पार्ट 1 व्हाट विल हैपन इफ रबर शीट इज यूज्ड। रबर शीट इज इम्परमिएबल स्टूडेंट्स, इम्परमिएबल मतलब किसी को भी एंट्री अलाउड नहीं है। सो कॉन्सेंट्रेशन पानी का यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, बीच में रबर शीट होगा। विल ऑस्मोसिस टेक प्लेस, नो, बिकॉज फॉर ऑस्मोसिस पहले बोल दिया क्या चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए और वाटर कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए, ग्रेडियंट, मतलब कहीं पे पानी ज्यादा कहीं पे पानी का, दोनों के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों में से कुछ भी मिसिंग है, ऑस्मोसिस नहीं होगा। सो इफ आई प्लेस अ रबर शीट देयर विल बी नो चेंज एट ऑल, प्रोवाइडेड वाटर ग्रेडियंट है बट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑस्मोसिस नहीं होएगा स्टूडेंट्स। व्हाई, बिकॉज इट इज इम्परमिएबल। Then they will ask in part 1 what will happen if muslin cloth is used. Muslin cloth, अगर मम्मी घर में हंकड़ बनाती है, श्रीखंड बनाती है या पनीर बनाती है, तो there is this cloth in which she ties it and then she keeps it in the fridge or outside just to drain water. So it is like a मलमल का कपड़ा, ठीक है, very 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 fine pores it has. So अगर मसलिन क्लॉथ डाल दिया तो क्या होएगा, मसलिन क्लॉथ इज फ्रीली परमिएबल स्टूडेंट्स, तो जिसको जाना है जाओ, जिसको आना है आओ, तो ऑब्वियसली ग्रेविटी एक्ट वो करेगा एंड पूरा का पूरा मेरा शुगर सॉल्यूशन विल बी पोर्ड इनटू द बीकर। तो चेंज तो दिखेगा बट इट विल नॉट बी अ डिजायर्ड चेंज। व्हाई, बिकॉज मसलिन क्लॉथ इज फ्रीली परमिएबल, तो नो डिजायर्ड चेंज, चेंज होगा बट इट विल नॉट बी द डिजायर्ड वन स्टूडेंट्स। सो नाउ और कौन से तरीके से ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, और कौन से तरीके से ये एक्सपेरिमेंट आ सकता है वो भी बता देती हूँ स्टूडेंट्स। समटाइम्स दे विल टेल यू बीकर में है 5% शुगर सोल्यूशन, 5% शुगर सोल्यूशन, एंड इन थिसल फनल आई हैव 10% शुगर सोल्यूशन। 5% शुगर सोल्यूशन, 10% मतलब दोनों में शुगर रहेगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे 5% शुगर है, शुगर कम है, सोल्यूट कम है, 10% शुगर, सोल्यूट ज्यादा है। तो अगर सोल्यूट कम है तो पानी ऑब्वियसली ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है तो पानी ऑब्वियसली कम है। तो यहाँ पे भी ऑस्मोसिस होगा फ्रॉम बीकर इनटू द थिसल फनल। सिर्फ कौन सा ऑब्जर्वेशन आई विल नॉट राइट, नॉट स्वीट वाला, बिकॉज दोनों में शुगर सोल्यूशन है, ऑब्वियसली इट विल बी स्वीट। सो यू कैन ईदर हैव अ प्योर सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट से हमेशा सोल्यूशन में पानी जाएगा, और एल्स यू कैन हैव टू सॉल्यूशंस विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो जिसमें सोल्यूट कम उसमें पानी ज्यादा, जिसमें सोल्यूट ज्यादा उसमें पानी कम, उस हिसाब से ज्यादा पानी से कम पानी में ऑस्मोसिस करवाना है स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। So let's discuss the experiment now. Experiment to prove osmosis. करना क्या है इसमें? So I have taken a potato. Potato को हाफ में कट कर लो, एंड हाफ में कट करने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा ऐसा कैविटी कर देना है। It's like a beaker, okay?
सो पोटैटो लिया, आधे में कट किया एंड बीच से कैविटी कर दिया. दिस इज द पोटैटो. आई हैव केप्ट इट इन अ पेट्री डिश और अ बीकर, व्हाटएवर यू वांट टू कीप इट इन. सो बाहर है वाटर, ये है मेरा पोटैटो. पोटैटो के अंदर रखा है शुगर सोल्यूशन. ओनली वाटर आउटसाइड एंड शुगर सोल्यूशन बोला मतलब वाटर प्लस शुगर, मतलब वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, शुगर इज द सोल्यूट. तो यहाँ पे सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दोनों है. यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है, सिर्फ पानी है और अंदर पानी के साथ शुगर सोल्यूशन है. आई हैव मार्क्ड द लेवल ऑफ द शुगर सोल्यूशन विद अ पेन. दिस इज द अपैरेटस. इसको थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे. आफ्टर फ्यू आवर्स यू विल नोटिस समथिंग. व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू नोटिस? ऑस्मोसिस करवाना है स्टूडेंट्स. मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम region of higher water concentration to region lower water concentration through a semi permeable membrane. तो पानी ज्यादा किधर है? बाहर है, बिकॉज बाहर सिर्फ पानी है. पानी कम किधर है? शुगर सोल्यूशन में, क्योंकि शुगर सोल्यूशन में वाटर के अंदर मैंने सोल्यूट भी डाला है. तो जैसे आप सोल्यूट डालोगे शुगर, वाटर कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली कम हो जाता है. तो बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है. पोटैटो बोला मतलब सेल्स, सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होता ही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. तो बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है एंड ये है मेरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो ऑस्मोसिस से वाटर विल गो फ्रॉम द पेट्री डिश इनटू द solution. So what am I going to notice is that the level of sugar solution is going to increase and this proves nothing but osmosis, because ये level मैंने पिन से पहले से मार्क किया था. अभी मेरा सोल्यूशन वो पिन से ऊपर चले गया है, मतलब वाटर फ्रॉम द पेट्री डिश हैज डेफिनेटली एंटर्ड इनटू द पोटैटो. इसका मतलब ऑस्मोसिस हैज एक्चुअली टेकन प्लेस. इसका और कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता है स्टूडेंट्स. नाउ आई वांट टू नो कि भाई ऑस्मोसिस से एपिडर्मल सेल्स में तो पानी चले गया, बट फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स how exactly your water reaches the xylem, and then from xylem how is it taken up? Ascent of sap students. So ये है मेरा रूट को मैंने कट किया है. So this is the रूट को कट किया. कट करने के बाद हम लोग उसको टॉप व्यू से देख रहे हैं. इट्स लाइक ये है मेरा रूट को मैंने हॉरिजॉन्टली कट किया एंड देन आई एम लुकिंग एट इट लाइक दिस स्टूडेंट्स. सो ये पूरा रूट एंड ये रूट को आधे में कट करके ऐसे. नाउ रूट के सबसे बीच में, सो यहाँ पे आई विल हैव माई वैस्क्यूलर बंडल, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम. सो what is the layer of cells from outside till xylem is the thing that I want to know students. So what have I done is मैंने पूरा का पूरा रूट नहीं बनाया है. I have just made a part of the root. मतलब मैंने पूरा का पूरा पिज्जा नहीं बनाया. I have just made a slice of a pizza. तो ये जो मैंने बनाया है ये ऐसे कंटिन्यूस थ्रू आउट राउंड में चलेंगे. हर एक लेयर्स कंटिन्यूस थ्रू आउट राउंड में चलेंगे. हमने पूरा राउंड बनाया नहीं है. वी हैव जस्ट मेड वन पार्ट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है. ये पूरा ऐसे सर्कुलर फैशन में सेम सेल्स रहेंगे. हम लोग देखेंगे बाहर से अंदर जाएंगे. सबसे बाहर के लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस. सो ये है मेरा एपिडर्मल सेल्स. एपिडर्मल सेल्स में से आउटग्रोथ्स कमिंग आर नथिंग बट रूट हेयर. ये अपना ऑलरेडी हो चुका है. उसके बाद तो यहाँ बाहर क्या रहेंगे? बाहर अपने पास होंगे सॉइल पार्टिकल्स एंड सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस से हैज एंटर्ड इनटू द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बाद ये जो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है स्टूडेंट, द ग्रीन वन आर कॉल्ड कॉर्टेक्स. सो एपिडर्मिस के बाद आ जाता है कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के बाद एक सिंगल लेयर आता है एंडोडर्मिस. जैसे बाहर एपिडर्मिस वैसे अंदर एंडोडर्मिस. कॉर्टेक्स के बाहर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के अंदर एक और लेयर है कॉल्ड पेरीसाइकिल एंड उसके बाद फाइनली माय वाटर विल रीच
into the xylem. तो दिल्ली बड़ी दूर है स्टूडेंट्स, सॉइल से सीधा पानी जाइलम में जाता नहीं है. सॉइल के बाद रूट है, रूट है के बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद जाइलम. एंड जाइलम से बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल, वो जो सक्शन फोर्स की बात की थी, वाटर विल बी पुल्ड अप. अभी वी विल स्टार्ट फ्रॉम एपिडर्मिस एंड वी विल गो अप टू जाइलम. सबसे बाहर एपिडर्मिस विद प्रोजेक्शन रूट है, एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर जाइलम. सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के बाद xylem. So you should know this in this sequence, students. After osmosis, you should know the next definition, that is osmotic pressure. What is osmotic pressure? Imagine करेंगे we are a solution. ठीक है, मतलब पानी है और मैं शुगर मॉलिक्यूल हूँ और मैं तैर रही हूँ पानी के अंदर. So this is my solution. This is a semi-permeable membrane. And ये semi-permeable membrane के बाहर अगर खोलेंगे, बाहर we have pure solvent, that is water, that is water. तो बाहर प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अंदर सोल्यूशन है. ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू द सोल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. प्योर वाटर में पानी हमेशा ज्यादा रहेगा, अंदर हम सोल्यूशन है. नाउ what will we have to do if I want to prevent the entry of pure solvent into the solution through the semi-permeable membrane? Is I will have to apply pressure. I will have to apply pressure. This pressure which we apply in order to prevent osmosis is osmotic pressure. So osmotic pressure क्या है? Pressure which we are going to use to prevent osmosis. कैसे देखेंगे? Let's see. So सेम मैंने एक्सपेरिमेंट बनाया, रफ डायग्राम है. प्योर सॉल्वेंट, सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन था, बाहर पानी, अंदर शुगर सोल्यूशन. वाटर विल गो फ्रॉम ऑब्वियसली ऑस्मोसिस, प्योर वाटर से जाएगा इनटू द शुगर सोल्यूशन. सो नाउ आई वांट टू प्रिवेंट द एंट्री. सो आई हैव टेकन दिस पिस्टन हियर, पिस्टन डाला है, पिस्टन के ऊपर आई हैव स्टार्ट पुटिंग वेट्स. सो दिस वेट विल एक्सर्ट प्रेशर which will prevent entry of pure solvent into the solution across a semi-permeable membrane. This is called osmotic pressure. So osmotic pressure is the minimum amount of pressure exerted to prevent entry of pure solvent into the solution when both are separated by a semi-permeable membrane. I repeat again, osmotic pressure is the minimum amount of pressure exerted to prevent the entry of pure solvent into the solution when both are separated by a semi-permeable membrane. One last time, it is the minimum amount of pressure exerted to prevent the entry of pure solvent into the solution when both are separated by a semi-permeable membrane. This is osmotic pressure for you. यहाँ पे अपना osmosis concept almost खत्म हुआ. That is it about the video, students. I hope that this was clear. Don't forget to share, like and subscribe the video. Till then, stop wishing, start doing, you guys.